محمد مولی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی السیدۃ المعصومۃ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد مولی محمد. دعائے مالکان عزت. آج کے اس ذکر کی عزت کے طفیل بانیان مجلس، ناظرین مجلس اور سامعین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال سوائے غم معصومین علیہم السلام کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. یا مالک ہر طرح کی تمام مشکلات سے نجات فرمائے، اور شہنشاہ عالمیان آج کے ذکر کا صدقہ بانیان جناب سید انتصار شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ناظرین و سامعین کے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں، میرا مالک تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب کی گئی ہے اس شہنشاہ معظم کے ساتھ جو اقلیم امامت کے دوسرے تاجدار ہیں اور آل محمد میں سے پہلے محمد ہیں. کیا بات ہے. آج کی گفتگو اس شہنشاہ معظم کے ساتھ منسوب ہے کہ جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہے. بہت خوب. شہنشاہ معظم سرکار حضرت امام حسن مجتبی کی شان کریمی کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ آج تذکرہ اس آقا و اس مولا کا ہے جو حسین کے بھی امام ہے. کیا بات ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ جب بھی گفتگو کی جائے، جب بھی بات کی جائے، کوئی تحریر لکھی جائے، کوئی تقریر کی جائے، کوئی کتاب پڑھی جائے، تو ایک لفظ سرکار حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت میں موجود ہوتا ہے جو ہر تحریر اور ہر تقریر میں آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے. صلح امام حسن. آج کی اور کل کی دو مجالس میں ہم کوشش کریں گے کہ تاریخی اعتبار سے اس تاریخ کی گہرائی میں جایا جائے کہ آخر اس لفظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے. کیونکہ اس کو تاریخ میں لکھا ضرور گیا ہے، یہ واقعہ ہوا ضرور ہے، لیکن اس واقعے سے دشمن نے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے، اور اس ایک جملے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایک شیلٹر مہیا کیا گیا ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے عنوان کے ساتھ. یعنی کہ صلح امام حسن مجتبی ہدایت کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے تھی، نہ کہ کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے تھی. بے شک. سب سے پہلے ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی پاک طیب زندگی کا مطالعہ جب کریں تو ہمیں بہت سے ایسے روشن پہلو نظر آتے ہیں جو کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبی کے نمایاں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آدم سے لے کے حضرت امام حسن تک پہلی فضیلت صرف حضرت امام حسن مجتبی کو حاصل ہوئی کہ ان کی ماں بھی معصومہ تھی اور ان کا باپ بھی معصوم. کیا بات ہے جی. ان کے پاس یہ فضیلت آئی کہ ان کی والدہ سیدت نساء العالمین ہیں اور ان کا باپ علی المرتضی ولی العالمین ہے.
सरकार हजरत इमाम हसन मुजतबा 15 रमजान को 3 हिजरी ज़ाहरी तौर पे दुनिया में अपनी ज़ियारत से लोगों को मुशर्रफ करवाया। सरकार हजरत इमाम हसन मुजतबा की जिंदगी की पहली गदीर पढ़ने लगा हूं, क्योंकि हर इमाम के ऐलान इमामत के लिए पिछली हुज्जत को कोई ना कोई गदीर बनानी पड़ती है, कोई ना कोई गदीर तरतीब दी जाती है जिसमें उस इमाम की इमामत का ऐलान किया जाता है। जैसा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग, मक्का के लोग अब्दुल्लाह का बेटा समझ रहे थे, लेकिन दावत जुल अशीरा में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रिसालत माब की तकरीर रखवा के अरब के लोगों को ये बात वाज़े तौर पे पैगाम पहुंचा दिया कि ये मेरा सिर्फ भतीजे ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी है। तो रसूल की रिसालत का जो पहला ऐलान हुज्जत के लिए तरतीब दिया गया वो दावत जुल अशीरा में हुआ। उसके बाद अगली हुज्जत अमीर अल मोमिनीन थे। अमीर अल मोमिनीन की विलायत, इमामत और खिलाफत का ऐलान करने के लिए रिसालत माब को गदीर में बहुक्म इलाही लोगों को रोकना पड़ा और बनसे कुरान मौला अमीर अल मोमिनीन की विलायत के ऐलान को एक मोहब्बत नहीं बल्कि तबलीग रिसालत के तौर पे अंजाम देना पड़ा। अब जब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान करना था तो यहाँ तारीख में एक बहुत खूबसूरत वाकया हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन ये दोनों शहजादे अमीर अल मोमिनीन के हैं और इमामत दोनों में तकसीम हुई है। इमामत दोनों के पास है। इमाम हसन भी इमाम है और इमाम हुसैन भी इमाम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान कुछ इस अंदाज से होता है कि रिसालत माब के पास एक शख्स आता है जिसका नाम अबू समसाम है। इसको अहले सुन्नत किताबों ने भी लिखा और हमारी किताबों में तो ये मौजूद है। लेकिन अबू समसाम जब रिसालत माब के पास आता है तो रिसालत माब उसको कहते हैं कि तुम अपने करिया, अपने गांव के 80 कबाइल को अगर मुसलमान करते हो तो मैं तुम्हें 80 ऊंट सुर्ख और सफेद से आंखों वाले यमन की चादरों से लदे हुए दूंगा। ये शख्स अपने क्रिया, अपने गांव के 80 कबाइल को मुसलमान करने के बाद जब ये मदीना में आता है तो रिसालत माब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं और खिलाफत का दौर खलीफतुल मुस्लिमीन तख्त पे मौजूद है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन के पास जाता है और रिसालत माब का किया हुआ वादा दरबार में दोहराता है। तो दरबार से उसे ये कहा जाता है कि रिसालत माब अपनी चंद चीजों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ के गए। हम तुम्हें 80 ऊंट सुर्ख और सफेद जो अरब के कीमती तरीन ऊंट है ये कहां से ला के दें। अबू समसाम दरबार में खड़ा होकर ये कहता है कि बाखुदा रसूल तो कहते थे कि अपने वादे को पूरा करो, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि वो अपना ही वादा ना पूरा कर सके। जब रिसालत माब की इज्जत पे हरफ आ रहा था तो सलमान मोहम्मदी अबू समसाम का हाथ पकड़ते। अब तक तारीख नवीस को यह वाकया लिखते हुए समझ नहीं आ रही थी कि रिसालत माब ने कभी भी किसी को कलमा पढ़ाने के लिए किसी उजरत का वादा नहीं किया था। यहां यह वादा क्यों हुआ, फिर अबू समसाम को तहरीर क्यों लिख के दी गई। लेकिन शायद बल्कि यकीनन हुज्जत खुदा इस राज इलाही से वाकिफ थी कि वो दौर शदीद होगा और उस दौर में इमाम हसन की इमामत का ऐलान किया जाएगा। अबू समसाम को अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे लाया जाता है और अमीर अल मोमिनीन अबू समसाम से कहते हैं कि सुबह को वादी अहजाब में आ जाना, वहां हम नबी के वादे को पूरा करेंगे। और सिर्फ ये ऐलान अबू समसाम तक नहीं जाता बल्कि ऐलान करवा दिया जाता है और शहर में मुनादी करवा दी जाती है कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को पूरा होता देखना हो वो कल वादी अहजाब में पहुंच जाए। वादी अहजाब में एक मजमा उमड़ आता है। लोग ये हैरत में, वर्ताए हैरत में मुब्तला होते हैं कि आखिर इतनी वसी तादाद 80 ऊंट सुर्ख और सफेद आंखों वाले, जिसमें 1 या 2 ऊंट तो यहाँ शहर मदीना से दस्तयाब हो सकते हैं, इतने ऊंटों को एक रात में इकट्ठा करना और फिर यमन की चादरें यमन से मंगवाना और यमन पे वही चादरें यमन की उन ऊंटों पर लाद के अबू समसाम को देना, ये वादा अली ने कैसे कर दिया और वो कैसे पूरा करेगा। अमीर अल मोमिनीन भी चाहते थे कि रिसालत माब के इस वादे की तकमील के लिए लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात मुब्तला हो, ताकि जो नहीं भी आना चाहता वो भी आए, जिसको अली के इख्तियारात पे शक था वो भी आए, जिसको रिसालत माब की वसीयत पे शक था वो भी आए। वादी अहजाब में मुसलमानों का एक पूरे का पूरा मजमा उमड़ आया। मजमे का उमड़ना था और नजरें थी अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे। अमीर अल मोमिनीन तरीक कहती है इस शान के साथ अपने घर से निकले कि एक हाथ में हसन है और दूसरे हाथ में हुसैन है। शहजादों को लिए हुए
वादी अहज़ा में पहुंचते और वादी अहज़ा में पहुंचते अपने हाथ से एक असा, वही असा जो मूसा के हाथ में हुआ करता था, जो तबर्रुकात अंबिया के वारिस अमीर अल मोमिनीन के हाथ में था, अमीर अल मोमिनीन वही असा इमाम हसन के हाथ में दे के कहते हैं, ए हसन, नाना के वादा को पूरा कर दीजिए। जब ये जुमला कहा जाता है तो इमाम हसन चलते हुए कदमों के साथ एक ऐसे टीला के करीब जाते हैं, वहां अपने असा के साथ उस टीले पे एक जरब लगाते हैं और वहां से रेत गिरती है और वहां से एक सफेद पत्थर नमूदार होता है जिसमें लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। जनाब हसन उस पत्थर को हटाते हैं और उसमें से एक रस्सी को बरामद करते हैं और रस्सी को बरामद करके अबू समसाम के हाथ में देते हैं और कहते हैं अबू समसाम चलना शुरू कर। अबू समसाम जब चलता है तो मदीना के लोग वरताए हैरत में मुबतला है कि ये क्या होने लगा है। या थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यमन की चादरों से लदा हुआ सुर्ख ऊंट उस पत्थर से बाहर निकलता है, उसके बाद दूसरा ऊंट निकलता है, तीसरा ऊंट निकलता है। 80 ऊंट सुर्ख और सफेद से आंखों वाले यमन की चादरों से लदे हुए जब अबू समसाम के पीछे चलते हैं तो 80 ऊंटों की तादाद मुकम्मल होने के बाद अबू समसाम जब पीछे मुड़ के देखता है तो इमाम हसन ठंडी आह भर के कहते हैं, ए अबू समसाम, काश तू चलता रहता तो क्यामत तक ये ऊंट निकलते रहते, क्यामत तक हमारी सखावत में कमी ना आ सकती थी। लोग चलते हुए इमाम हसन के पास आए और कदमों में गिर के कहने लगे, ए मोहम्मद का बेटा, हमने आज तक कभी पत्थर से दाने को निकलते हुए देखा है, हमने पत्थर से पौधे को निकलते हुए देखा है, हमने पत्थर से पानी को निकलते हुए देखा है, लेकिन ये 80 ऊंट कहां से निकल आए। इमाम हसन मुस्कुरा के कहते हैं, काश तुमने कुरान को समझा होता। खुदा ने साले नबी की नाका को एक पहाड़ी से निकाल दिया था, तो जिस खुदा ने नाका साले को निकाला था उसी खुदा ने 80 ऊंटों को निकाला है, और वो 80 ऊंट भी अल्लाह के अम्र से निकले थे और नाका साला भी अल्लाह के अम्र से निकला था। और ये कहने के बाद इमाम हसन मुश्तबा अपने अमामा मुबारक को अपने कांधा मुबारक पे रख के कहते हैं, नहनु अमरुल्लाह, वो अल्लाह का अम्र हम है। क्या बात है, जियो किबला, नारे हैदरी या जियो किबला, माशाअल्लाह। देखने में बाजार पहली गदीर थी जहां हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने अपने इख्तियारात को वाज़े कर दिया। इमाम हसन मुश्तबा के इख्तियारात वाज़े हो चुके थे अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में। यानी कि अगर इस इख्तियार को मैंने तारीखी एतबार से पढ़ा, अगर मैं अकायद के एतबार से पढ़ूं तो ये जुमला ठीक होगा कि अली के होते हुए जो अपना इख्तियार दिखा रहा था, क्या बात है किबला, क्या अली जैसे शहंशाह के होते हुए जिसने अपनी कुदरत और ताकत को दिखाया। किताबों में लिखा है, साहब बिहार अल्लामा मजलसी लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनके सामने मोहम्मद हनफिया बैठते थे तो इमाम हुसैन के जलाल की वजह से कलाम नहीं करते थे, गुफ्तगू नहीं करते थे। इमाम हुसैन की महफिल में बैठ के मोहम्मद हनफिया कलाम नहीं करते थे जलाल हुसैन की वजह से। और वही बिहार में आगे लिखा जाता है कि वो मोहम्मद हनफिया जो एहतराम और जलाल हुसैन में महफिल हुसैन में बात नहीं करते थे, वो हुसैन जलाल हसन की वजह से महफिल हसन में कलाम नहीं करते थे। इमाम हसन मुज्तबा वो तारीख साज शख्सियत। अब जो मैंने जुमला कहा जिसपे 2 मजलिसों पे हम कोशिश करेंगे कि तारीखी एतबार से इसका हाथा करें, जिस लफ्ज को मुतनाज़े बनाया गया उसका नाम है, उस उन्वान को लिखा जाता है सुलह इमाम हसन। देखे साहबान, मैं ये बात पहले आपके अज़हान आलिया में अरसाल करूं कि तारीख का मजहब नहीं होता, तारीख की हैसियत एक न्यूज़पेपर की होती है। वहां वाकयात को कोड किया जाता है, लेकिन मुअर्रिख तारीख लिखते हुए वाकये के आखिर में नतीजे को तब्दील करता है। अब यहां लफ्ज लिखा गया सुलह इमाम हसन। सुलह इमाम हसन के साथ बहुत से लोगों को यह गलत फहमी हुई, उन्होंने ये गलत फहमी फैलाई कि देखे इमाम हसन ने सुलह कर ली थी तो लिहाजा जिनसे सुलह की गई है अब उन्हें दुश्मन तसव्वुर ना किया जाए। मैं सबसे पहला सवाल यहां रखना चाहता हूं अहले जुबान से कि अगर आपने सुलह इमाम हसन लिखा तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सुलह हमेशा दुश्मन के साथ होती है, दोस्त के साथ नहीं होती। तो आपको सुलह के बाद में तारीख नहीं पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा सुलह से पहले दुश्मनी क्या थी। पहले आपको दुश्मन मानना पड़ेगा, फिर सुलह माननी पड़ेगी।
दूसरी बात, सुलह आम लोगों के दरमियान होती है, अपने जैसों के दरमियान सुलह होती है। हुज्जत के सामने लफ्ज सुलह का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये लफ्ज तारीख में इससे पहले इस्तेमाल हुआ है। ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ था सुलह हदैबिया की सूरत में। लेकिन माफ कीजिएगा, बाज हमारे शिया मिंबर से भी पढ़ते हुए कहा जाता है कि रिसालत इमाम ने भी सुलह कर ली थी, इमाम हसन ने भी सुलह की थी, लेकिन रिसालत इमाम की सुलह में और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुआहिदे में बड़ा फर्क है। सुलह रसूल काफिरों के साथ थी, काफिर उम्मती नहीं होता। बेशक सुलह का मतलब है कि जंग बंदी, सुलह का मतलब है सीज फायर, सुलह का मतलब है जंग को रोक देना। लेकिन जब कोई मुसलमान होके हुज्जत का कलमा पढ़ ले, हुज्जत की अतात कर ले, तो उसके लिए लफ्ज़ सुलह सादर नहीं आएगा। वहां उम्मती अगर गलती करे तो वो इमाम से माफी मांगेगा। बेशक माफी का लफ्ज आ सकता है उम्मती के लिए, सुलह का लफ्ज नहीं आ सकता। चले मैं इसको और आसान करता हूं। हुर ने शब अशूर इमाम हुसैन से सुलह नहीं की थी, क्या बात, इमाम हुसैन से माफी मांगी थी। बेशक जब उम्मती को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो हुज्जत से माफी तलब करता है। अब यहां पे क्या हुआ कि इमाम हसन मुज्तबा के सामने एक मुआहिदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिखा। वो मुआहिदा लिखने की जरूरत क्यों महसूस? हमें जरूरत को देखने के लिए तारीख में जाना पड़ेगा कि आखिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर कौन सा दौर था। जब हम इससे पीछे जाते हैं तो हमें नजर आता है कि इमाम हसन मुज्तबा के दौर से पहले मौला अमीर अल मोमिनीन का दौर जो था, रिसालत इमाम की जिंदगी के आखिरी अयाम और उसके बाद मौला अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी के मुसाइब और आलाम, जब हम उस पर नजर दौड़ाते तो हमें एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आती कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन को उनके हक से महरूम रखा गया। जब उनके हक से महरूम रखा गया और खिलाफत जो है वो उम्मत ने तकसीम की, और 25 साल के बाद उम्मत जब दोबारा आई, मौला अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे आती और आके कहते हैं अली आप खिलाफत को कबूल कर लीजिए, तो अमीर अल मोमिनीन कहते हैं कि आज से 12 साल पहले तुम मेरे पास आए थे और तुमने मुझसे यही शर्तें रखी थी, और मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम कुरान और सुन्नत पे अमल करोगे तो मैं अली खिलाफत को कबूल करूंगा। तुमने कुरान और सुन्नत के साथ एक सीरत का तज़किरा किया, मैंने इनकार सीरत से किया था, और आज भी मैं उसी इनकार पे खड़ा हूं। अगर तुम उस सीरत में चाहते हो तो अली तुम्हारी खिलाफत को कबूल नहीं करेगा, चाहे तुम 100 खिलाफत के जीने और अबूल कर लो। अली पहले दिन अपनी उसी शर्त पे खड़े थे कि सिर्फ कुरान और सुन्नत होगा, और अमीर अल मोमिनीन की राय जो कि इमाम की राय होती है उसकी अहमियत होगी। किसी उम्मती की सीरत का तज़किरा नहीं होगा, किसी गैर मासूम की सीरत का तज़किरा नहीं होगा। उम्मत 3 बार अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे, अमीर अल मोमिनीन ने तीनों बार इसी शर्त को रखा कि कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। आखिर हुकूमत वालों ने और उम्मत ने अमीर अल मोमिनीन की बात को कबूल किया और आके कहा कि आए अमीर अल मोमिनीन, अब आप खिलाफत को कबूल कर लीजिए, हम आपकी शर्त कबूल करने के लिए तैयार हैं। अमीर अल मोमिनीन ने कहा चलो मस्जिद में, मैं मस्जिद में आता हूं। अब अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में आए, और अमीर अल मोमिनीन ने मस्जिद में आकर जो खिलाफत का खुतबा दिया, अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि देखो तुमने खिलाफत को मुझसे दूर रखा था सिर्फ इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे कि मैंने तुमसे कहा था कि कुरान और सुन्नत के अलावा किसी की सीरत पे अमल नहीं होगा। मैं अली आज भी यही चाहता हूं कि कुरान और सुन्नत के अलावा किसी की सीरत पे अमल नहीं होगा। अगर ये चाहते हो तो मेरी हाथ में बैयत करो। लोगों ने बैयत करनी शुरू की। अब मैं यहां पे जुमला कहना चाहता हूं, ये बैयत जो हो रही थी, ये 2 तरह की बैयत हो रही थी। यहां पर एक कॉन्फिडेंस का वोट आ रहा था और एक नो कॉन्फिडेंस का वोट आ रहा था। जिस पे एतमाद किया जा रहा था उसका नाम अली था, और अमीर अल मोमिनीन यहां सिर्फ अपनी बैयत नहीं ले रहे थे, अमीर अल मोमिनीन कह रहे थे कि मेरी शर्त है कि कुरान और सुन्नत के अलावा किसी की सीरत पे अमल नहीं होगा। उम्मत ने मान लिया कि किसी की सीरत पे अमल नहीं होगा। जब उम्मत ने मान लिया कि किसी की सीरत पे अमल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जिन सीरतों पे अमल होता रहा उम्मत ने उनकी नफी कर दी। उम्मत ने अमीर अल मोमिनीन के हक में वोट देके, इस मतलब है कि सिर्फ वोट अमीर अल मोमिनीन के हक में नहीं जा रहा, ये वोट उनकी मुखालफत में भी जा रहा है जिनकी शर्त अली की शर्त के साथ टकरा रही है। अमीर अल मोमिनीन इस एक शर्त के साथ हुकूमत को कबूल करते कि कुरान और सुन्नत पर अमल होगा। लेकिन हुआ क्या, जब अमीर अल मोमिनीन तख्त पे बैठे
تو اب رشوت کا بازار گرم ہو گیا، اب لوگوں کو خریدا جانا شروع ہو گیا، اب ایک ایسا معرکہ شروع ہو گیا جہاں پر لوگوں کو کھینچا جا رہا تھا امیر المومنین کے خلاف۔ دمشق مرکز بن گیا، شام مرکز بن گیا، امیر المومنین کی مخالفت میں، عداوت میں، امیر المومنین کے نظام حکومت سے گھبرائے ہوئے، امیر المومنین کے دین مسلط کرنے کے ڈر کے خوف، ان تمام وجوہات نے لوگوں کا ایک جم غفیر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اب امیر المومنین اس مجمع کو دوبارہ واپس لینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میں امام حسن علیہ السلام کی جنگ پڑھنے لگا، مولا اس لشکر کو واپس بھی نہیں لینا چاہتے۔ جب مولا اس لشکر کو واپس بھی نہیں لینا چاہتے تھے تو امیر المومنین نے 2 مارکے کیے، جمل، صفین۔ جمل اور صفین میں امیر المومنین کے مقابلے پہ آنے والے یہودی یا عیسائی نہیں تھے، یہ وہی لوگ تھے جو امیر المومنین کی مخالفت میں وہاں سے گئے تھے۔ صاحبان یہاں میں ایک عرض کروں، دیکھیں جنگ اور جہاد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جنگ اور ہے، جہاد اور ہے۔ جنگ اور امام معصوم کبھی جنگ نہیں کرتا، امام جب بھی کرتا ہے جہاد کرتا ہے۔ جنگ اور جہاد میں وہ فرق ہے جو فاقے میں اور روزے میں ہوتا ہے۔ فاقے میں بھی بھوکا رہنا ہوتا ہے، روزے میں بھی بھوکا ہونا رہتا ہے۔ فاقے اور روزے میں عبادت روزے میں ہوتی ہے، فاقے میں نہیں۔ کیوں؟ وہاں عبادت کی نیت ہوتی ہے۔ جنگ میں اور جہاد میں یہ فرق ہے، جہاد اسلام کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جب عبادات میں سے ایک عبادت ہے تو یہاں میں سوال رکھوں گا کہ ہر عبادت کا خدا نے وقت معین کیا ہے۔ نماز ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر کا وقت، ظہرین کا وقت، مغربین کا وقت، نماز اوقات میں پڑھی جاتی۔ روزے رمضان میں واجب کیے گئے، زکوٰۃ مالدار پہ کی گئی، حج امیر پہ کیا گیا۔ ہر عبادت معین اور محدود ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ جیسے ہر وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے ہی ہر وقت جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کی اذان ہوتی ہے، جہاد کا حکم امام دیتا ہے۔ بے شک مثلا جہاد انتہائی سینسٹیو ایشو ہے۔ مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ شاید نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ کی وہ شاید غلط تھی، نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے نماز پڑھ لی، یا نماز کا وقت گزر چکا تھا تو آپ نے نماز پڑھ لی۔ شریعت میں آپ کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ نماز کا اوقات اور نماز کا وقت کیا ہے، لیکن آپ نے اول وقت جان کے نماز پڑھی، تو شریعت میں آپ کو سزا نہیں ہے۔ آپ نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، آپ کی غلطی سے پانی پیا گیا، جبکہ آپ کی نیت نہیں تھی روزہ توڑنے کی، آپ سے غلطی سے پانی پیا گیا، تو آپ کے لیے یہاں پر بھی عبادات میں گناہ کا تصور موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جہاد میں یہ چیز نہیں ہے۔ نماز غلط ٹائم میں پڑھ لو، روزہ غلطی سے کھول لیا جائے، کچھ کھا لیا جائے، لیکن جہاد میں اگر گردن غلطی سے کٹ گئی تو واپس کیسے آئے گی؟ لہذا جہاد میں غلطی کی بھی گنجائش نہیں۔ اب یہ جہاد کون دے گا؟ جب معصوم حکم دے گا۔ اور خدا کی پالیسی کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ تندور میں تھے، آگ نے اثر نہیں کیا۔ جب فرعون کے دربار میں تھے تو کوئلے سے ہاتھ جل گیا، کیونکہ تندور میں حضرت موسیٰ کا مقام تھا، دربار میں حضرت موسیٰ کا امتحان تھا۔ خدا حجت کے لیے پالیسی تبدیل کر دیتا ہے۔ رسالت امام مکہ میں تھے، مصلحت نہیں تھی، جنگ نہیں کی۔ مدینہ میں آئے، اذن آ گیا، جنگ کر دی۔ رسول کے بعد امیر المومنین، مصلحت تھی، تلوار روک لی۔ جمل آئی، تلوار نکال لی۔ صفین آئی، تلوار نکال لی۔ مولا علی کے بعد امام حسن کا دور آیا، مصلحت نہیں تھی، تلوار نیام میں رکھ لی۔ مولا حسین کا دور آیا، تلوار پھر نکل آئی۔ تو ہر دور میں حجت جب جہاد کرتی ہے تو حجت امت کی مرضی کے مطابق جہاد نہیں کرتی، امت دین خدا کی تشہیر کے لیے جہاد کرتی۔ اب حضرت امام حسن مجتبی اس دور میں جب یہ لوگ
अमीर अल मोमिनीन के लश्कर को छोड़ के शाम में जा चुके थे। ये शाम पहुंच चुके थे, रिश्वत के साथ लोगों को खरीदा जा चुका। अमीर अल मोमिनीन की शहादत 40 हिजरी को होती है। इमाम हसन के हाथ में बैत हो जाती है। इमाम हसन को फौरन मिंबर में बिठा के कहा जाता है कि ऐ हसन आप भी आइए, हम आपके साथ लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। 80 सरदार खरीद लिए जाते हैं। जब 80 सरदार खरीद लिए जाते हैं तो इमाम हसन मुश्तबा क्या करते हैं? इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं इन्हें भी शाम जाने दो, क्योंकि तुम रिश्वत के साथ बिक जाते हो। अगर तुम्हें शाम का हाकिम खरीद सकता है तो तुम्हें रूम का ईसाई भी खरीद लेगा, क्या बात, तुम्हें यहूदी भी खरीद लेगा। तो बजाय यहूदियों के हाथ बिकने के, ईसाइयों के हाथ बिकने के, तुम शाम जा रहे हो तो हसन की शर्त लेते जाना, कुरान और सुन्नत में अमल करना, रहो जहां मर्जी। मौला हसन ने कुरान और सुन्नत की शर्त लगा के उम्मत को शाम में कैद कर दिया था। दरअसल इमाम हसन का इंतकाम ये था कि इन्हें शरीयत के पिंजरे में बंद करके कैद कर दिया जाए। क्या बात है। ये कतअन तारीख नवीस इसे इस अंदाज से ना लिखे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग करना नहीं जानते थे। आप जाइए जमल पढ़िए, आप जाइए सफीन पढ़िए, आप मौला इमाम हसन की जंग पढ़िए, मौला इमाम हसन के हमले पढ़िए। आप देखिए कि जंग जमल में मौला अमीर अल मोमिनीन जब कहते हैं अपने लश्कर से कि कौन है जो हमला करेगा, तो अमीर अल मोमिनीन तारीख ने बड़े खूबसूरत अंदाज से उस मंजरनामे को लिखा है कि जमल की पहली सुबह थी, सफेदी शहर नमूदार हो चुकी थी, सूरज बादलों की आगोश से आंख खोलना चाहता था। ये अमीर अल मोमिनीन ने अपने खैमे का पर्दा हटाया। अमीर अल मोमिनीन ने जमल का मंजर देखा। अमीर अल मोमिनीन ने जमल के मंजर को देखने के बाद अमीर अल मोमिनीन इस अंदाज से घोड़े में बैठे कि अमीर अल मोमिनीन जब चल रहे थे तो तारीख ने क्या दिलफरेब मंजर लिखा कि अमीर अल मोमिनीन जब घोड़े की पुष्ट में सवार थे तो अली के दाएं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे चल रहे थे। अमीर अल मोमिनीन की बाईं तरफ हजरत अकील के 10 बेटे चल रहे थे। मोहम्मद हनफिया पहलू में चल रहे थे, अब्बास पीछे चल रहे थे, हसन साथ चल रहे थे, हुसैन साथ चल रहे थे। ऐसे अमीर अल मोमिनीन के बेटे, अली के अली बेटे, एक जैसे चेहरे, एक जैसी दाढ़ियां, एक जैसे रुख, अली के साथ चलते हुए ऐसे जा रहे थे। तारीख कहती आज पता ही नहीं चल रहा था इनमें बड़ा अली कौन है, इनमें छोटा अली कौन है। इतना कहना था। ये अमीर अल मोमिनीन एक टीले पे खड़े होके जमल के मंजर को देखते हैं और अमीर अल मोमिनीन एक ऊंट की तरफ इशारा करके कहते हैं ये इस ऊंट के लिए मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा होनी शुरू हो गई, कहीं इसकी पूजा ना होनी शुरू हो जाए। कौन है जो इस ऊंट को जख्मी करे? इतना कहना था। कौन है जो इस ऊंट को जख्मी करे? या अली के पहलू से बिजली किसी तेजी से एक घोड़े सवार निकलता है और वो मैदान जंग में पहुंच जाता है। अमीर अल मोमिनीन पूछते हैं ये कौन गया है? तो आवाज आती है आपका बेटा हसन चला गया है। और मौला हसन जाके 30,000 के लश्कर को चीरते हुए सीधे ऊंट की दाईं आंख में नेजा गाड़ देते हैं। नेजा गाड़ के इमाम हसन वापस आते हैं तो अली के गुलाम और अली के नौकर और अली के सहाबा इमाम हसन के पास जाके कहते हैं मौला आपने हमला करने में जल्दी क्यों कर दी? फरमाया बाबा ने कहा था कोई है। जब बाबा ने कोई है कहा था तो हसन की गैरत ने गवारा नहीं कहा कि बाप रईश और बेटा हमला ना कर। क्या बात है जियो किबला, नारा और इसी जमल में मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहा कि मोहम्मद हमला करो, लेकिन हमला करते हुए मोहम्मद इतना देखना, नहजुल बलागा में पूरा वाकया लिखा हुआ है कि मौला ने फरमाया कि अपनी रकाबों में पांव दे के जोर रखना, अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों में जमा के रखना और देखना मोहम्मद हनफिया तुम्हारी नजर आखिरी सफ के खड़े हुए आखिरी सिपाही पे होनी चाहिए। इतना कह के लश्कर के दरमियान में घुस जाना। जनाब मोहम्मद हनफिया अमीर अल मोमिनीन के सनाए हुए जंग के असूल के साथ, सिखाए हुए जंग के तरीके के मुताबिक घोड़े की सीन में बैठते हैं। या जनाब मोहम्मद हनफिया जब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सामने तीरों की बारिश आती है, जनाब मोहम्मद हनफिया अपने घोड़े को रोकते हैं, सर को झुकाते हैं, तीरों को सर के ऊपर से गुजारते हैं, फिर चलते हैं, फिर रोकते हैं, फिर तीरों को सर से गुजारते हैं। तीसरा तवक्कुफ अभी मोहम्मद हनफिया करते हैं। या मोहम्मद हनफिया के करीब से घोड़ा तेज रफ्तारी से गुजरता है और सफों को चीरते हुए आखिरी सफ के बंदे की गर्दन को काट देता है। जब मोहम्मद हनफिया दरियाफ्त करते हैं ये कौन है तो कहा जाता है इमाम हसन ने हमला कर दिया है, इमाम हसन लश्कर में घुस गए हैं। मोहम्मद हनफिया वहीं पर रुक जाते हैं, अपनी आंखों को झुका लेते हैं। अमीर अल मोमिनीन का घोड़ा मोहम्मद हनफिया के करीब आता है। मोहम्मद हनफिया के चेहरे में परेशानी है और माथे में खौफ का पसीना है। अमीर अल मोमिनीन आके कांधे पे हाथ रखते थे, मोहम्मद किस बात पे परेशान हो रहा है कि तुमने हमला नहीं किया और हसन ने हमला कर दिया? तेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं, तो अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा। क्या बात है जी, वही इमाम हसन है।
जिन्होंने सफीन के मैदान में अकेले ने पूरे का पूरा घाट खाली करवा दिया था। जब इमाम हसन खैमे में है और इमाम हसन के कान में आके खबर पहुंचती है कि पता चला है कि फुरात का किनारा अली के मुखालिफ लश्कर ने पहरे के साथ बंद कर दिया है और किसी अली के लश्कर को पानी नहीं लेने दे रहे, तो मौला इमाम हसन चलते हुए जाते हैं, अमीर अल मोमिनीन से जाके पूछते हैं, बाबा आप क्या चाहते हैं, क्या फुरात का घाट खाली करवाया जाए? या इमाम हसन फुरात का घाट खाली करवाने के साथ जब घोड़े की जीन में बैठते हैं और घोड़े की जीन में बैठ के जाते हैं, तो किताबें कहती हैं यहाँ माल की अश्तर को जब पता चलता है, जब माल के अश्तर की कान में आवाज पहुंचती है कि इमाम हसन जा रहे हैं और वो पहुंच गए हैं फुरात का घाट खाली करवाने के लिए, तो जनाब माल की अश्तर किताबें कहती पहली बार ऐसा हुआ माल के अश्तर ने घोड़े पे जीनें रखी, घोड़े की नंगी पूंछ में बैठ गए और अपने घोड़े को इमाम हसन के पीछे दौड़ाया। जब इमाम हसन के पीछे दौड़ा रहे हैं तो अमीर अल मोमिनीन का रुक मालिक, जरा मुझे हसन की जंग देखने दे और मुझे हसन का हमला देखने दे। किताबें कहती हैं ऐसे 80,000 लोग फुरात के घाट के ऊपर खड़े हैं और फुरात पे कब्जा किया है, या इमाम हसन जाते हैं, चेहरे पे नकाब है, इमाम हसन इस अंदाज के साथ फुरात के साथ जाते हैं कि इमाम हसन अपनी तलवार को बिल्कुल सीधा करते हुए यूं गर्दनों को काटते हुए फुरात के किनारे के करीब जा रहे हैं। यूं ही जब गर्दनें कटती हुई देखी है तो एक शख्स जो शाम के लश्कर से था वो एक टीले के ऊपर चढ़ के कहता है, उसने कहा बच जाओ इस जवान से, इसके चेहरे का नकाब और इसकी तलवार का रो बता रहा है या अली आ गया है या अली का कोई बेटा आ गया। क्या और अगर आप इससे भी ज्यादा अगर आसान करना चाहें और इससे भी ज्यादा बेहतर करके मुझसे सुनना चाहें तो मैं इमाम हसन की शुजाअत एक जुमले में बंद करूंगा, जैसे समुद्र कतरे में समोया जाता है, एक जुमले में इमाम हसन की शुजाअत बंद करना। इतने शुजा थे इमाम हसन के अब्बास हसन के शागिर्द थे। क्या बात है, या अली हक। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने ये जो कलम उठाया था, इंशाल्लाह हम कल की मजलिस में इसकी मुकम्मल तफसील, सुलह की शर्तें और इमाम हसन मुश्तबा के कातिल के मुकम्मल तारीखी हकायक आपके सामने बेनकाब करेंगे कि इमाम हसन मुश्तबा की सुलह की शराइत क्या थी और सुलह की मजीद मुहर्रिकात क्या थी। इमाम हसन मुश्तबा ने जो कागज कलम उठाया था, ये मुआहिदा असल में मलूकियत की मौत का परवाना, बादशाहत को उनकी अपनी अबदी नींद सुला देना था। ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने ऐसा नुस्खा कीमिया लिख दिया कि इस शर्तों की जंजीरों ने आज भी मलूकियत को जकड़ा हुआ है। एक जुमले पे पूरी की पूरी तकरीर तमाम हो जाती है। अगर इमाम हसन वो शर्त की रस्सी ना बांधते कि आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा, तो जिन लोगों ने उसे अमीर अल मोमिनीन बनाया था वो आज इस्लाम से निकल के फिर दोबारा यहूदी और ईसाई हो जाते। इमाम हसन मुज्तबा ने बांध दिया उम्मत को कुरान और सुन्नत की शर्त की जंजीर, और आज तक इमाम हसन मुज्तबा आज भी उम्मत में जहां जहां आपको दुश्मनी अहले बैत नजर आ रही है, वहां आप एक चीज देखेंगे, अहले बैत से भूस है कुरान सीने के साथ, आले मोहम्मद से दुश्मनी है, लेकिन सुन्नत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जहां अहले बैत को छोड़ के कुरान और सुन्नत की बात हो रही हो तो समझ लेना मलूकियत का नुमाइंदा है और हसन की जंजीर में जकड़ा हुआ है, वरना ये बहुत जल्दी अपने गले से इस्लाम की रस्सी को खोल देते हैं, बहुत जल्दी अपने उसी दीन पे पलट जाते। तदब्बुर हसन था, हिकमत इमाम हसन थी। आज पहली रात है क्योंकि ये दो शहादतें हैं। अल्लाह सैयदादी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह विलायत अली इस चैनल को जनाब सैयदा ज़हूर इमाम ज़मा के वक्त इसे नुसरत इमाम ज़मा पे और ताईद इमाम ज़माना पे इसको लिखा जाए, और इस चैनल के साथ जितने भी
افراد وابستہ ہیں اور بالخصوص برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب، میرا مالک ولی العصر اس کاوش اور اس صحیح کو قبول فرمائے۔ صاحبان، شہادت ایک نہیں، شہادت دو ہوئی۔ آج بھی مظلومیت رسالت مآب ہے کہ آج بھی رسالت مآب کے ساتھ لفظ وفات لکھا جاتا ہے، جبکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے۔ دوا میں شفا ہوتی تو رسول کبھی انکار نہ کرتے۔ آج تک امت جس نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے اس نبی کی شہادت سے ناواقف ہے، خبر ہی نہیں کہ ہمارے نبی کی آخری لمحے کس غربت کی حالت میں گزرے۔ یہ وہی کائنات کا رسول جس نے مکہ میں پتھر کھائے تھے، جس نے کانٹے برداشت کیے تھے، جس نے سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، شیب ابی طالب میں محصور رہے لیکن کلمہ حق امت تک پہنچایا۔ غدیر کے بعد اس رسول کو اتنا تنہا کر دیا گیا کہ رسالت مآب اپنے حجرے میں خاموش ہو کے رہ گئے۔ صاحبان، یہ تاریخ لکھنا، یہ پڑھنا آسان کام ہے۔ جس امت کو مکہ سے لے کے چلے تھے، جن کے لیے کتنا تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں برداشت کی تھی، دشمنی علی اور بغض علی نے اس رسول کو اتنا تنہا کر دیا کہ رسول اپنے حجرے میں تنہا ہو کے رہے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آخری ایام تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت مآب سے ایک وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ، میں خویلد کی بیٹی، میں آپ کے گھر آئی، میں نے نہ بہتر لباس مانگا، نہ میں نے بہتر خوراک مانگی، اچھا کھانا ملا، اچھا لباس ملا، نہ ملا، لیکن یا رسول اللہ آخری وقت میں خدیجہ کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ رسالت مآب نے کہا، بول زہرا کی ماں، تیرے بڑے احسان ہیں، اللہ نے کرم بھی دیکھ کیا، تیرے احسان کا بدلہ دیا، امامت تیری نسل میں رکھ دی، جنت کی سرداری تیری نسل میں رکھ دی، خاتون جنت تیری بیٹی بن گئی۔ فرمایا یہ احسان پروردگار ہے، لیکن یا رسول اللہ میں ماں بھی تو ہوں نا، میں ماں ہو کے کچھ مانگ سکتی ہوں۔ فرمایا زہرا کی ماں مانگ۔ رو کے کہتی ہے، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں۔ اتنا کہنا تھا یا رسالت مآب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ فرمایا خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے بعد اپنی امت کو بتا دینا میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تھا، رسول رو کے کہتے ہیں، خدیجہ زندگی میں تو کوشش کروں گا میری فاطمہ نہ روئے، لیکن میرے مرنے کے بعد امت سلوک کیا کرے اس کا وعدہ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد میری فاطمہ کو رلائے گی؟ اتنا کہنا تھا یا رسالت مآب کہتے بہت روئے گی میرے جانے کے بعد تیری بیٹی۔ کہتے یا رسول اللہ پھر مجھے بتا میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کیسے روئے گی؟ رسالت مآب کی آواز آئی، خدیجہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بی بی دیکھ کہتی ایک دربار ہے اور ایک مستور درمیان میں کھڑی۔ بس صاحبان، یہی آج کی شب جب رسالت مآب تنہا رہ گئے، جب رسالت مآب کو انہی کے حجرے میں تنہا کر دیا گیا، تو رسالت مآب نے جیسے جناب خدیجہ نے وصیتیں کی تھی اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ آپ پورا سال سنتے ہیں جناب امام حسین اور بی بی سکینہ کا ملنا، آج کی مجلس میں سنیے گا جناب سیدہ کو رسول کا ودا، آخری وقت ہے، رسالت مآب بستر پہ، رسالت مآب سیدہ کا سر پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھتے، سینے پہ سر رکھنے کے بعد رسالت مآب کہتے فاطمہ میرے بعد رونا نہ۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا آپ کے بعد زندگی کا تصور نہیں، بابا آپ کے بعد میں فاطمہ زندہ کیسے رہوں گی؟
रसूल रो के कहते फातिमा अपनी जिंदगी में मैंने अपनी उम्मत को बड़ा दिखाया, तू दरबार में आती थी मैं मिंबर छोड़ देता था, जितनी देर आप खड़ी रहती थी मैं खड़ा रहता था, जब तक आप गुफ्तगू करती थी मैं खामोश रहता था। मैंने आपके दरवाजे पर रुक रुक के उम्मत को बताया आपके दरवाजे का एहतराम क्या है, मैंने दरूद पढ़ पढ़ के बताया आपके दरवाजे की इज्जत क्या है, मैंने सलाम कर करके बताया कि आपके दरवाजे का हया क्या है। सैयदा मेरे बाद उम्मत कैसा भी सलूक करे ज़हरा, लेकिन एक वादा करता हूं मैं ज्यादा देर तुम्हें रहने नहीं दूंगा। फातिमा चंद दिन इस दुनिया में गुजार लेना, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। इतना कहना था ये सैयदा का सर बाबे के सीने पे है, बाबे का मुंह चूम के कहती बाबा आप न रोए, आपके आंसुओं पे बेटी कुर्बान, तेरा दीन बचाने के लिए फातिमा को जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। लेकिन या रसूल अल्लाह बाबा एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ? हाँ फातिमा पूछे। रो के कहती है ये मुसीबत सिर्फ माँ तक रहेगी, मेरी औलाद पे तो असर नहीं। इतना कहना था, चीखे मार के रोए रसूल। फरमाया फातिमा तेरे जाने के बाद तेरी औलाद भी रुल जाएगी। रो के कहती या रसूल अल्लाह मुझे इतना बताइए कि क्या ये जुल्म सिर्फ मेरे बेटों के साथ होगा? फरमाया सिर्फ बेटों के साथ नहीं, तेरी बेटियां भी जाएंगी। इतना जुमला कहना था। फरमाया मेरी माँ को आपने आखिरी वक्त में मेरी हालत दिखाई थी, या रसूल अल्लाह मुझे बताए मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या हाल होगा? इतना कहना था, रिसाल दिमाग की आवाज आई फातिमा दरबार शराबी का होगा, ज़ैनब चुप करके खड़ी रहेगी। इतना कहना था, चीखे मार के रोई मोहम्मद की बेटी, रो के कहती बाबा मैं फातिमा ये बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बाद मेरी बेटी दरबार में चली जाए। बाबा जितनी देर मुझे कहेंगे मैं दरबार में खड़ी रहूंगी, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटी दरबार में न जाए। फरमाया तू जाएगी मेरी नबूवत बचाने के लिए, तू जाएगी अली की विलायत बचाने के लिए, ज़ैनब जाएगी हुसैनियत बचाने के लिए, अली की विलायत को बचाने के लिए। इतना कहना था, रो कहती है बाबा अली की विलायत बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जब थोड़ी देर बाद दरवाजे में दस्तक हुई, बाप और बेटी की इतनी मोहब्बत की बातें हो रही थी। सैयदा दरवाजे के अंदर गई, देख कहती कौन है? आवाज आती है बीबी आपके बाबा से मिलना चाहता हूँ। फरमाया चले जाइए दरवाजे से। 3 बार दस्तक होने के बाद कहती बाबा ये बार बार कौन आ रहा है? फरमाया सैयदा जो किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगता, ये तेरे दरवाजे पे इजाजत मांगता है, ये तेरे दरवाजे पे झुक जाता है। किताबें कहती हैं बेटी के जानू पे बाप का सर था, या रसूल की आंखें बंद हुई, सैयदा ने बाबे के चेहरे पे अपना चेहरा रख लिया, बाबे की आंखों पे अपना मुंह रखा, रो के दी बाबा इतनी जल्दी आंखें बंद कर दी, बाबा तेरे बाद तेरी फातिमा बड़ा रोएगी। किताबें कहती है इतनी मोहब्बत थी बाप और बेटी की, रसूल दुनिया से चले गए, इतना रोती थी सैयदा कि मदीने के लोगों ने आके मौला अली से कहा फातिमा से कहे या दिन को रोया करे या रात को रोया करे, अपना वक्त मुकर्रर करे, इसकी चीखों की आवाजों से हमें नींद नहीं आती। क्या गुर्बत सैयदा थी कि अमीर अल मोमिनीन को ज़हरा के लिए एक बैतुल हुज़न बनाना पड़ गया, एक ऐसा घर बनाना पड़ गया जहां पे सिर्फ फातिमा रोती थी, रो रो के कहती थी बाबा तेरे बाद तेरी बेटी जिंदा नहीं रहना चाहती। जुल्म ये हो गया मोहम्मद की बेटी का वो बारगाह गिरा दिया गया, हुसैन की माँ का वो खाना गिरा दिया गया, वो बैतुल हुज़न गिर गया। फिर रसूल की कच्ची कब्र पे रुखसार रख देती थी, रो के कहती बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरे बाद तेरी फातिमा गरीब हो गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वहुम। मेरे मालिक इस इबादत को कबूल फरमाए, का मौला हमारी इस इबादत पे राजी हो, हमारे इस पुरखे पे राजी हो। मेरा मौला हमारी सही कोशिश और कावश को कबूल मंजूर फरमाए, सैयदादे की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनके बच्चों को अज़ादार बनाए, इनको बच्चों को मुहिब आले मोहम्मद बनाए, इनकी औलाद को नासरीन इमाम ज़माना में शुमार फरमाए, इनके मरहूमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरे आका मौला हमारे पुरसे से राजी हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना